اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل کے ماحولیات سے وابستہ یہ بات کر رہا ہوں۔ اکثر لوگ بیمار ہیں، کسی نہ کسی تکلیف بیماری کا شکار ہیں، اور پھر خاص طور پر جو پینڈیمک سچویشن اس وقت کریٹڈ ہے، لوگ اس سے بھی ڈرے سہمے رہتے ہیں۔ اللہ کا ذکر تمام بیماریوں سے ایک بہت بڑی پروٹیکشن ہے۔ جہاں اللہ کے نام مبارک کے ذکر کے اور بہت سارے فوائد ہیں، وہاں ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ ہر قسم کی تکلیف، بیماری سے، وائرس سے پروٹیکشن عطا فرماتا ہے، پروٹیکشن عطا فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس پر ایک اطمینان کی چادر تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی اس پر ایک اطمینان کی چادر تان دی جاتی ہے، اور فرشتے چاروں کونوں میں اس اطمینان کی چادر کے کونے پکڑ کر کھڑے رہتے ہیں۔ اس کی اگر ڈیٹیل میں جائیں تو وہ اطمینان کی چادر کیا ہے؟ وہ اطمینان، وہ سکون، وہ راحت، وہ کیا ہے؟ کیا وہ اطمینان ہمیں کسی تکلیف، بیماری سے پروٹیکٹ نہیں کر سکتا؟ کیا وہ اطمینان اور سکون جو ہمارے اوپر اترا ہوا ہے، کیا وہ ہمیں کسی بیماری سے پروٹیکٹ نہیں کرتا؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی بیماری ہو اور وہ اطمینان ہمیں فائدہ نہ دے؟ نہیں۔ ذرا بات کو اس کی ڈیپتھ تک، اس کی گہرائی میں جا کر سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ پاک کی طرف سے جب کسی پر اطمینان کی چادر تانی جائے تو ہر قسم کی تکلیف، بیماری، تذبذب، اضطراب، بے چینی، مصیبت، بلا، پریشانی، دکھ، تکلیفیں سب دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ اطمینان کی چادر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ اور کیسے آئی ہے؟ اسی کے نام مبارک کی ذکر کی برکت سے۔ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، نہیں ملتا سکون قلب مگر ذکر اللہ سے۔ بھئی میرا جسم تکلیف میں ہوگا تو میرے دل میں سکون کیسے آئے گا؟ مجھے کوئی بیماری، کوئی وبا چمٹی ہوگی تو مجھے سکون کیسے آئے گا؟ میں تو اس تکلیف، اس اذیت میں ہوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے ذکر سے راحت و سکون آتا ہے، چاہے وہ کسی بھی پریشانی، دکھ یا بیماری میں ہی آپ کیوں نہ مبتلا ہوں، وہ آپ کو راحت و سکون دیتی ہے، اطمینان دیتی ہے، ٹھیک ہو جاتی ہے۔ پھر ایک اور بات، ہم اکثر یہ جو خفی اور قلبی ذکر کرتے ہیں، اس کا جہاں بہت سارے فائدے ہیں، وہاں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب آپ دل سے، ذرا لاجیکل اس بات کو انڈرسٹینڈ کیجئے گا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ اگر آپ دل سے اللہ 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 پکارنا شروع کر دیں، کیا ہوگا؟ لاجیکلی انڈرسٹینڈ کریں، فائنڈ آؤٹ کریں کیا ہوگا۔ دل تو ہے ایک خون پمپ کرنے والا ایک آرگن، ایک طرف سے خون اٹھاتا ہے، دوسری طرف پریشر کر دیتا ہے، ایک طرف سے اٹھاتا ہے، دوسری طرف پھینک دیتا ہے، ایک طرف سے اٹھاتا ہے، دوسری طرف دھکیل دیتا ہے۔ اب ساتھ آپ نے اسے کہہ دیا، مانیٹر کر دیا، ہاں بھائی اللہ 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 کیا کر۔ اب وہ دل کیا کر رہا ہے؟ خون اٹھاتا ہے، کہتا ہے اللہ، آگے فارو، دو خون اٹھاتا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ بھائی جب دل اللہ اللہ کرنے لگ جائے گا، ہر بار جب خون آگے پریشر کرے گا، ساتھ اللہ شامل کر دے گا، اور اللہ کے نام مبارک کی جب برکتیں اس خون میں شامل ہو جائیں گی، وہ خون جن جن رگوں میں، شریانوں میں، ویسلز میں، جن جن مسام میں وہ خون جائے گا، تازہ خون لے کر،
ताज़ा सेल्स लेकर, अल्लाह के नाम मुबारक की बरकत लेकर आप मुझे बताएं, क्या उस जिस्म में, उस खून में, उन शरियानों में, उन वेसल्स में, उन ब्लड सेल्स में कहीं कोई बीमारी, कोई वायरस रहेगा? मेरा तो ये मानना है कि नहीं रहेगा। भाई हक और बातिल कभी इकट्ठे नहीं रह सकते, या हक रहेगा या बातिल रहेगा। और यकीनन हक बहुत ताकतवर है, अल्लाह बहुत ताकतवर है, बहुत बड़ा है। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अजीम, और उसका नाम बड़ा अजमतों वाला है। जब उसके नाम की अजमतें आपको नसीब होंगी, कोई बीमारी नहीं रहेगी, कोई तकलीफ नहीं रहेगी, कोई वायरस नहीं रहेगा। एक खास इत्मीनान आपके ऊपर तान दिया जाएगा, एक खास सुकून में आप उतर जाएंगे। ये तकलीफें, बीमारियां पीछे रह जाएंगी, आपको राहत और सुकून नसीब होगा, आपको शिफा नसीब होगी। याद रखिएगा, अल्लाह का नाम मुबारक बहुत अजमतों वाला है। अगर कोई तकलीफ में है, बीमारी में है, परेशानी में है, खूब कसरत जिक्र करें, उस रब को पुकारें, और जिसको पुकारेंगे वही मुखातिब होगा, वही मुखातिब होगा। और वो आपको आपसे ज्यादा जानता है, वो आपको आपकी मां से 70 गुना ज्यादा प्यार करता है। कैसे आपको तकलीफ में देख सकता है? खुदारा अल्लाह का जिक्र किया करें, कोई तकलीफ, कोई बीमारी नहीं रही। नहीं जी, मैं वो जिक्र करता हूं, फिर भी मुझे कोई परेशानी आ गई, तो फिर सब्र करें। वजह क्या है भाई, आप सब्र का क्यों कह दिया? हाँ जी, इसलिए कि अगर कोई अल्लाह पाक की तरफ से कोई आजमाइश है तो फिर क्या करेंगे भाई? अगर आपको राहत और सुकून है तो उसके साथ सब्र और शुक्र का भी तो हुक्म है कि नहीं है? राहत और सुकून उतरा, बहुत अच्छे हालात और मामलात हो गए, शुक्राना अदा करें। नहीं, फिर भी कोई तकलीफ, कोई आजमाइश आ गई, कोई परेशानी आ गई, तो फिर सब्र करें। अब आपका सब्र चेक हो रहा है। ये अल्लाह ताला की हिकमतें हैं, वो कभी देकर आजमाता है। तो ये मेरा शुक्राना भी अदा करता है कि नहीं करता? कभी वो लेकर आजमाता है कि अच्छा अब इसके पास कुछ नहीं रह गया, ये सब्र करता है कि नहीं करता? कभी आपका तवक्कल चेक होता है कि यार ये मुझ पे भरोसा करता है कि नहीं करता? अल्लाह ने इनाम देना है ना जी। नमाज है, बड़ा करम है नमाज में। मोर देन 700 टाइम फरमान है कि नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो। लेकिन एन नमाज के वक्त में कोई ना कोई आजमाइश आ जाती है, कोई ना कोई मुश्किल आ जाती है, कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। भाई चेक होता है कि आप कितने मुत्तकी परहेजगार हैं, कितना तवक्कल है आपका अपने रब पर, आप नमाज को कितना अजीज रखते हैं। इतनी मुश्किलें, रुकावटें आने के बावजूद आप सारे रास्ते तोड़ाकर आप फिर भी मस्जिद में चले गए नमाज के लिए। इतनी प्यारी नींद थी, इतनी मजेदार नींद थी, फिर भी आप गर्म बिस्तर छोड़कर उठ गए अपने रब की बारगाह में क़याम और रुकू और सजदे करने के लिए। चेक होना है आपने, अल्लाह पाक आज़माता है। और अगर फिर भी कोई तकलीफ हो, मैं अपनी बात पर फिर वापस आ रहा हूँ, अगर आप बहुत जिक्र करते हैं, बहुत अल्लाह की याद में रहते हैं, और फिर भी कोई तकलीफ आए तो सब्र करें, उस पर भरोसा तो करें, उस पर तवक्कल तो करें। इंशाअल्लाह ताला उसका और बड़ा इनाम मिलेगा। लिहाजा अपनी तकलीफों, बीमारियों को दूर करने के लिए और अपने आप को तमाम बीमारियों से प्रोटेक्ट करने के लिए भी अल्लाह का जिक्र किया करें। भाई अल्लाह का जिक्र कैसे करूं? हाँ, अपने मशाइख, अपने असातिज़ा, अपने वालिदैन से पूछे उनसे, प्लीज मेरी रहनुमाई फरमाएं। ये जो महफिल जिक्र आप सुनते हैं, ये जो महफिल जिक्र आप अटेंड करते हैं, इसमें सीखें, जो बातें सीखते हैं उसकी प्रैक्टिस करें। मैं अभी अर्लियर यही बात कह रहा था कि ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं, बल्कि बहुत सारे उलमा
बहुत सारे मुकर्रीन आपने सुने होंगे, बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी मजेदार तकरीरें करने वाले आपने सुने होंगे, बड़ी बड़ी रूह को तड़पा देने वाली तकरीरें भी आपने सुनी होंगी, बड़े बड़े जय्यद किस्म के उलमा को आपने सुना होगा, लेकिन अगर उनकी बातों का आप पर असर नहीं हुआ, आपने उनकी बातों से कभी कुछ नहीं सीखा, तो खुदारा वो तकरीरें आपके किसी काम की नहीं, वो वाज आपके किसी काम के नहीं, वो पीर साहब, वो आलम दीन, वो मुफ्ती आपके किसी काम के नहीं। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। अमल करें, प्लीज अमल करें। भाई मुझसे नमाज के लिए फुर्सत नहीं है, भाई मैं बड़ा फंसा हुआ हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरे पास बहुत सारे उज़र बहाने हैं, तो फिर अल्लाह का जिक्र करें। जैसे जैसे आप अल्लाह का जिक्र करेंगे, वैसे वैसे आप पर एक खास रूहानियत तारी होगी, एक खास सुकून उतरेगा, आपके दिल को, आपके दिमाग को एक इत्मीनान हासिल होगा। ये जो अफरा तफरी है, ये जो तज़ब्ज़ुब है, बेचैनी है, ये छट जाएगी, और फिर इंशाअल्लाह ताला आपका दिल खुद ब खुद करेगा कि आप नमाज की तरफ जाएं, दिल खुद ब खुद करेगा आप कुरान पढ़ें, दिल खुद ब खुद करेगा कि आप दुरूद पाक पढ़ें बैठकर। जरा गौर तो करें, भाई मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, मैं दुरूद पाक पढ़ रहा हूँ, मैं तस्बीहात पढ़ रहा हूँ, मैं जिक्र कर रहा हूँ, मुझे क्या हासिल हो रहा है? कोई भी इनमें से आप अमल करेंगे, एक खास हुबाब, एक खास रूहानियत का एक औरा कायम हो जाएगा आपके इर्द गिर्द, एक खास गर्दिश होगी रूहानियत की, एक खास इत्मीनान की चादर तनी होगी आप पर। इन कामों में खैर है, बरकत है, करके देखें, एहतमाम करके, वजू करके, चाहे नमाज पर बैठ, खुशबू लगाकर, कुरान खोल के बैठ जाए, पढ़ी, दिल ही दिल में नहीं पढ़ना, लब हिलाकर आवाज के साथ तलावत करें। थोड़ी देर में, फ्यू मिनट्स में आप देखेंगे कि खास रूहानियत आपको महसूस होगी। बाबा फरिश्ते आ जाते हैं कुरान को सुनने के लिए, फिर जो आप पढ़ रहे थे फिर वो इकट्ठा करते हैं, फिर वो लेके अपने रब की बारगाह में चले जाते हैं। आपके नामा अमाल में भी लिख दिया जाता है, हाँ जी इसने इतना कुरान पढ़ा, इसने इतना जिक्र किया, इसने इतनी नमाजें पढ़ी, इतने नवाफिल पढ़े, इतना जिक्र किया, इतना दुरूद पाक पढ़ा। आपको तो खबर ही नहीं है कि ये सारे खैर और भलाई के नेक अमल किस तरह इकट्ठे किए जाते हैं, किस तरह इनको कदर के साथ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश किया जाता है, किस तरह ये दुरूद पाक कदर के साथ आपके नाम से हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया जाता है। दोबारा इसको गनीमत जाने, अल्लाह पाक ने आपको एक खूबसूरत जिंदगी बख्शी है, और इस जिंदगी का मैक्सिमम वक्त अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत और याद में गुजारें। कभी क़याम और रुकू में, सजदों में, कभी कुरान की तलावत में, कभी दुरूद पाक की तस्बीह में, और कभी जिक्र अस्कार में। और जिक्र सबसे ज्यादा आसान है, मैं तो कहता हूँ सबसे ज्यादा आसान है। मैंने पहले भी बताया, फिर दोहरा देता हूँ, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते अल्लाह का जिक्र किया करें। कितना आसान, दिल ही दिल में अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कितना आसान। किसी को खबर भी नहीं है कि आप दिल ही दिल में क्या पढ़ें, दिल की तसव्वुरी जुबान से अल्लाह 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 करते रहे। आपके करीब आपकी मिसेज लेटी होंगी, उसको भी खबर नहीं होगी कि आप अल्लाह कर रहे हैं। आप अपने वालिदैन के पास बैठे होंगे, उनको भी खबर नहीं होगी कि आप दिल ही दिल में अल्लाह पढ़ रहे हैं। फरिश्ते जो हर वक्त लिख रहे होते हैं, आजिज आ जाते हैं कि इसने कितनी बार अल्लाह पढ़ा, या अल्लाह कितनी बार लिखे। अल्लाह फरमाता है ये मेरे और मेरे बंदे का मामला है, मैं जानता हूं इसने कितनी बार अल्लाह पुकारा है। जिसका नाम पुकारेंगे वो मुखातिब होगा, वो देखता भी है, वो जानता भी है, वो भी जानता है, खुद उसने फरमाया
وہ بھی جانتا ہے جو ہم دلوں میں چھپائے بیٹھے ہیں. اللہ کا ذکر کیا کریں. خدا را کوئی تکلیف بیماری آپ کے پاس نہیں آئے گی. اپنی پروٹیکشن کے لیے چلیں کریں، لیکن کریں اللہ کا ذکر کریں. بیماریوں سے فراغ کے لیے ہی صحیح، لیکن اللہ کا ذکر کریں. پریشانیوں تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے ہی صحیح، لیکن اللہ کا ذکر کریں. جیسے جیسے آپ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بگڑے ہوئے کام سنورنے شروع ہو جائیں گے. آپ کی بگڑی ہوئی بیماریاں شفاؤں میں بدلنی شروع ہو جائیں گی. کیسا ہی ماحول یا کیسا ہی آلودہ جگہ ہو جہاں آپ موجود ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ پروٹیکشن میں رہیں گے. آپ اللہ کی پروٹیکشن میں رہیں گے. میں تو اکثر بلکہ دعا کیا کرتا ہوں، آپ کو بھی بتا رہا ہوں الفاظ، یہی دعا آپ بھی کیا کریں کہ یا اللہ زمین و آسمان میں موجود ہر چیز کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اللہ ہمیں اپنی امان و پناہ عطا فرما. آپ بھی مانگا تو زمین و آسمان میں اب ہر خشک و تر چیز آپ کو نقصان نہیں دے گی. کیوں؟ آپ اللہ کی پناہ میں ہیں. بھائی کسی دشمن سے خطرہ ہو اور آپ علاقے کے چودھری کی پناہ میں چلے جائیں، کسی منسٹر کی پناہ میں چلیں، کوئی پرائم منسٹر کہے کہ اچھا بھی آپ میری ذمہ داری میں ہیں، میری پناہ میں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا وہ آپ کو پروٹیکشن دے گا. تو جب آپ اللہ کی پناہ میں چلے جائیں گے، اللہ آپ کو امان دے رہا ہوگا، کون سی شے ہے جو آپ کو تکلیف پہنچائے گی. ذکر کے حوالے سے ایک اور بات، آخری بات، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں جی، اس کے بعد دعائے خیر ہوگی. جو دل غافل ہوتا ہے نا، اس میں شیطان آ کے وسوسے ڈالتا ہے. لیفٹ کندھے پر، حدیث مبارکہ بہت لمبی حدیث ہے، میں شارٹ مفہوم بیان کر رہا ہوں، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے. شیطان مچھر کی سی مچھر نما شکل میں آ کے لیفٹ کندھے پر بیٹھتا ہے، لمبی سی چونچ دل میں ڈالتا ہے وسوسے ڈالنے کے لیے. جو دل غافل ہوتا ہے اس میں وہ بڑی مہارت کے ساتھ، بڑی کامیابی کے ساتھ وسوسہ داخل فرما دیتا ہے. وسوسہ ڈال دیتا ہے، فرما نہیں سکتا وہ. اس میں بڑی کامیابی اور مہارت کے ساتھ وسوسہ ڈال دیتا ہے. اور جو دل ذاکر ہوتا ہے، اللہ کے ذکر میں رہتا ہے اور اللہ کے ذکر کی برکت اس کے دل میں موجود ہوتی ہے، وہ چونچ تو ڈالتا ہے پر اسی سپیڈ سے باہر نکال دیتا ہے جیسے اسے کرنٹ لگا ہو. کیوں؟ کہ جو ذاکر دل کے اندر انوارات اترتے ہیں وہ ان کو برداشت نہیں کر سکتا، اور پھر اس میں وسوسہ بھی نہیں ڈال سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا غافل ہوگا تو وسوسہ آئے گا، اور اگر غافل نہیں ہے تو وسوسہ بھی نہیں آئے گا. اور یہ وسوسے کیا ہیں؟ یہ ہر مصیبت، ہر بلا، ہر پریشانی، ہر دکھ کی جڑ ہے، بنیاد ہے وسوسہ. اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہم سب کو وسوسوں سے، شیطانی وسوسوں سے، شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے اور نفس کی چال بازیوں سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دو زانو ہو کر بیٹھ جائیں اتحیات کی تشہد کی شکل میں. ہاتھ آگے کی طرف اٹھا لیں، کم از کم سینے کے برابر ہوں. اگر اس سے بھی زیادہ اونچے ہو جائے تو کوئی برائی نہیں، لیکن ناف سے نیچے نہیں ہونے چاہیے. زبان سے لب ہلا کر آمین کہنا ہے. انشاءاللہ تعالی یہ ادب سے بیٹھنے کا طریقہ اور اللہ کی بارگاہ سے مانگنے کا طریقہ افضل ترین ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کی جھولیاں خوشیوں سے بھریں گی، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی اور آپ کی منتیں مرادیں بھر آئیں گی. بہت ہی عقیدت سے، حسن اخلاق سے اللہ کی بارگاہ سے مانگیں، اس طرح کہ جیسے مزدور مزدوری کر لے اور اس کی اجرت ملنے کا وقت ہو اور وہ اپنے مالک کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاوے.
खिलाओ भाई, मेरी उजरत अता कर दो। दुनियावी मालिक, दुनिया जिसके लिए हम काम करते हैं वो भी आपकी उजरत दे देते हैं, तो वो तो फिर रब है, सबसे बड़ा रब, खालिक और मालिक, राजिक। और वो अपने टाइटल में लिखता है वल्लाहि खैरुर राज़िकीन, कि बेशक अल्लाह सबसे ज्यादा खैर वाला रिज़्क देने वाला है। अल्लाह पाक आपकी मेरी ये खरी कमाई हमारी झोलियों में डाल दो, ऐसी कमाई जो दुनिया में भी, हशर में भी, कब्र में भी, आखिरत तक हमारे काम आए। या रब्बुल आलमीन, या अल्लाह, तेरे नाम मुबारक का जिक्र किया है, हक अदा नहीं कर सके, कोशिश की है कबूल फरमा, थोड़ा किया है ज्यादा करके कबूल फरमा। हमने अपने टूटे फूटे अंदाज में किया, तो अपनी शान के लायक करके कबूल, हक अदा नहीं किया अल्लाह, बस तेरे नेक पाक लोगों की नकल की है, उनकी नकल करते हुए हमने कोशिश की है, अल्लाह कबूल फरमा लेना। हमें वो तरीका, वो सलीका सिखा देना जो तेरी बारगाह में कबूल व मकबूल हो जाए। तमाम लोगों की, सबकी हाजिरी कबूल फरमा। जो आज तक हमारे साथ महफिलों में शामिल हुए उनकी भी हाजिरी कबूल फरमा। जो आना चाहते थे किसी वजह से नहीं आ सके, अल्लाह उनकी भी हाजिरी कबूल फरमा। जो दिली तौर पर आ गए उनकी भी हाजिरी कबूल फरमा। जो रूहानी तौर पर आ गए, अल्लाह उनकी भी हाजिरी कबूल फरमा। और हम सब के लिए ये बाइस बरकत, बाइस रहमत, बाइस नजात बना दे। अल्लाह ऐसा जिक्र अता फरमा, ऐसी हलावत अता फरमा जो हम भी मुस्तफीद हों, हमारी औलादें भी मुस्तफीद हों और हमारी आने वाली नस्लें, जनरेशन भी मुस्तफीद हों। ऐसा करम अता फरमा अल्लाह। हम सबको दीन और दुनिया की भलाई अता फरमा, दुनिया व आखिरत की कामयाबियां अता फरमा। जमीन व आसमान में मौजूद हर चीज के शर से अल्लाह तेरी पनाह मांगते हैं, हमें अपनी अमान व पनाह अता फरमा। अपना फक्र, अपना तवक्कल, अपनी मार्फत अता फरमा। अल्लाह हमें सब्र और शुक्र अता फरमा। हमारे जाहिर व बातिन में जो भी दुख तकलीफें, बीमारियां, मुसीबतें, बलाएं, परेशानियां हैं, अपनी शान करीमी से दूर फरमा दे। जो भी रजील ताकतें, नेगेटिव फोर्सेस, जादू टूने वार हैं, सब रद्द फरमा दे। अल्लाह कुल उम्मत मुसलमान की खैर फरमा दे, आलमे इस्लाम की खैर फरमा दे, मुसलमान मुल्कों, इलाकों, सरहदों की खैर फरमा। अल्लाह जहां कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म तोड़े जा रहे हैं, मालिक अपने खजाना गैब से उनकी मदद अता फरमा। अल्लाह कुफार को उनके नापाक इरादों में बुरी तरह नाकाम फरमा, उनको हदायत नसीब फरमा, लगाम अता फरमा, रहम वाला मामला फरमा। अल्लाह मुसलमानों पर रहम फरमा, मुसलमानों की इज्जत और शर्मों पर रहम फरमा, मुसलमानों की इमलाक पर अपना करम और प्रोटेक्शन अता फरमा। या अल्लाह मुसलमानों को वही सरवरी अता फरमा, वही ताज अता फरमा। या अल्लाह जो तूने अता फरमा रखा, यकीनन हमारी अपनी कमजोरियां हैं, कोताहियां हैं, गलतियां हैं, माफ फरमा दे। अल्लाह तौबा करते हैं, सच्ची करके कबूल फरमा। हम कुल उम्मत मुसलमान की तरफ से तौबा करते हैं, कबूल फरमा ले। ये बहुत मुबारक महीना है, आज़मीन हज तेरी बारगाह में आए हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के तराने गाते हुए तेरी बारगाह में हाजिर हैं। अल्लाह तुझे उन प्यारे लोगों का जो सारी दुनिया से जुदा होके दो कपड़ों में, एक खास तेरे पसंदीदा लिबास में तेरी बारगाह में हाजिर हैं, कहीं क़याम और रुकू कर रहे हैं, कहीं तवाफ कर रहे हैं, कहीं कुर्बानियों के निशान नजराने पेश करेंगे। अल्लाह उनके सदके वसीले से कुल उम्मत मुसलमान पर रहम फरमा दे, आलमे इस्लाम पर अपना करम अता फरमा दे, मुसलमानों की सफ़ों में इत्तेहाद पैदा फरमा दे। अल्लाह हर शर से इनको महफूज फरमा दे। जिन्होंने भी दुआओं के लिए कहा या जिनका हम पर हक है, हमारी तमाम दुआएं उनके हक में भी कबूल मकबूल फरमा। खुसूसन बीमारों के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह सबको शिफा अता फरमा, शिफाए कुल्ली, सेहत कामिला आजिला अता फरमा। अल्लाह खुसूसन हमारी एक बहन है खैरुल निसा जुबैदा, इंडिया में है, अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमा, जिंदगी तंदुरुस्ती अता फरमा, सलामती अता फरमा। अल्लाह तो कुदरत रखता है कि तू उम्र बढ़ा दे, जिंदगी और बख्श दे,
تو कुदरत रखता है अपनी बारगाह से शिफाएं अता फरमा दे। हम सब बीमार हैं, कोई ज़ाहरी बीमार है, कोई बातनी, कोई जिस्मानी, कोई रूहानी। हमारे अंदर बड़ी कदूरतें हैं, बड़ी कमजोरियां हैं, कजरवियां हैं। अल्लाह सबको शिफाएं अता फरमा। जो हाथ उठाए बैठे हैं सबको शिफाएं अता फरमा दे अपनी बारगाह से, सबको सलामती अता फरमा दे। जितनी भी जिंदगी है तेरी बारगाह में क़याम और रुकू और सजदे करते गुजरे, ऐसी तौफीक अता फरमा दे। जितनी भी जिंदगी है अल्लाह दीने इस्लाम पर जिंदगी इस्तकामत पर गुजार कर जाएं, ऐसा करम अता फरमा दे। जब वक्त मौत आए तो अल्लाह कलमे और ईमान पर हमारा खात्मा करना। तेरी बारगाह में आए तो कल्बे सलीम लेकर आए। अल्लाह हमें जिक्र की हलावत अता फरमा, कोई लम्हा हमारा गफलत में न गुजरे, ऐसा जिक्र अता फरमा। हर लम्हे हर घड़ी हमारा दिल जब धड़के तो तेरे नाम के साथ धड़के, तेरा नाम पुकारता हुआ धड़के, ऐसा करम अता फरमा। हम कोशिश कर रहे हैं पर इस कल्ब को जारी करने की ताकत अल्लाह तेरे पास है। सब ताकतें तेरे पास हैं, सब तौफीकें तेरे पास हैं। हम तो कोशिश कर रहे हैं, हम तो जुस्तजू कर रहे हैं, हम तो रजू कर रहे हैं। अल्लाह तुझसे मांग रहे हैं, अता फरमा दे। हम सब की दुआओं को शर्फ कबूलियत अता फरमा दे। जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा दे, जो तंगदस्त हैं उनकी तंगदस्तियां दूर फरमा दे, जो मकरूज हैं उन्हें कर्जों से खलासी अता फरमा दे। अल्लाह जो बे औलाद हैं उन्हें नेक और साले औलादें अता फरमा दे। जो अपनी औलादों की वजह से परेशान है उनकी औलादों को हदायत वाला बना दे। हमारे तमाम बच्चे बच्चियों के नसीब जोड़ मुकद्दर अच्छे फरमा दे। इरफान भाई की बेटी की शादी हुई, अल्लाह उस नए जोड़े के लिए हम दुआ गो हैं, उन्हें दुनिया जहां की खुशियां अता फरमा दे। अल्लाह उस बच्ची के नसीब व मुकद्दर अच्छे फरमाना। अल्लाह उस पर अपना खास और खास करम जारी और सारी रखना। उनके वालिदैन की उमर बाबा के लिए दुआ गो हैं, सफर में हैं, अल्लाह सबकी खैर करना, सब पर अपना लुत्फ व करम अता फरमाना। और भी जिन्होंने, जो मुझे याद है, जिन्होंने मुझे याद भी नहीं है, जिन्होंने मुझे दुआओं के लिए कहा, सबके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह तू आलिमुल गैब है, तू सबको जानता है, सबकी दुआओं को कबूल फरमा दे। साथी मेरे पास बैठे हैं, बड़े मोहब्बत वाले, हर वीक आते हैं, एहतमाम और इंतजाम करते हैं, सफर करके आते हैं, घंटा डेढ़ घंटा सफर करके आते हैं। या अल्लाह इनकी तमाम हाजात पूरी फरमा दे। अल्लाह ये मुझे बहुत अजीज हैं, जो दामे धर्मे कदमे सुखने सलाहियत से, वक्त से, पैसे से दीन की खिदमत कर रहे हैं, दीनदारों की खिदमत कर रहे हैं, दीन इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, तेरे मिशन में, तेरे महबूब के मिशन में हिस्सा बने हुए हैं। अल्लाह किसी चीज की कमी ना देना। इनके जाहिर व बातिन, अव्वल व आखिर खैर खैर, हर दम खैर ही खैर। तमाम नेक ख्वाहिशात, नेक हाजात, नेक तमन्नाएं सबकी पूरी फरमा दे, खुसूसन इनकी पूरी फरमा दे। या अल्लाह मुझ पर, मेरी औलाद पर भी अपना लुत्फ व करम जारी सारी, इस घर पर ऐसा करम फरमा दे, घर पर, घर के रहने वालों पर, दरो दीवार पर, इन दरों पर आने वाले हर नेक नियत साइल पर अपना करम अता फरमा दे। अल्लाह हम हर दम तेरा जिक्र करें, ऐसा करम अता फरमा। जिक्र करें भी और जिक्र कराएं भी, मुस्तफीद हों भी और मुस्तफीद करें भी, ये तेरे करम से मुमकिन है, तेरे नाम से मुमकिन है। अल्लाह करम अता फरमा। बहुत सारी दीन की, दीनदारों की खिदमत करना चाहते हैं, हिम्मत ताकत और तौफीक अता फरमा। हमारे मशाइख, असातिज़ा और वालिदैन के दर्जात आला तरीन फरमा। जो हयात हैं उन्हें जिंदगी, तंदुरुस्ती, बुलंद दर्जा अता फरमा। जो चले गए उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। कब्र की हश्र की मंज़िलें आसान फरमा। जिस वली कामिल ने, जिस मर्द कलंदर ने हमें हक और सच की राह दिखाई, अल्लाह उनके दर्जात आला तरीन फरमा। हमारे मुर्शिद करीम के दर्जात आला तरीन फरमा। उनके खानवादों की खैर फरमा, साहबजादगान की खैर फरमा, आस्थानों की, खलीफों की खैर फरमा। जहाँ जहाँ दीन की बूटियाँ फैला रहे हैं सबको इस्तिकामत अता फरमा। हजूर मियाँ साहब मुबारक उम्र खिज़री अता फरमा। हजूर मुबारक साहब रहमतुल्लाह ताला का फैज़ पूरी दुनिया में आम फरमा। या अल्लाह ये रूहानियत, ये जो करम तूने हमें अता फरमाया, अल्लाह इसको और फरोग अता फरमा। हमारे दिलों को अपने नूर से मुनव्वर फरमा, हमारे सीनों को अपने नूर से मुनव्वर और कुशादा फरमा। अल्लाह हमारी जुबानों को सहफ कर दे, बासर कर दे। जो मोहब्बत वाले पास आके बैठे मुस्तफीद होके जाएं। हमारी आंखों में वो नूरानियत अता फरमा कि जिसको मोहब्बत से देख लें
अल्लाह उसकी केमिस्ट्री चेंज हो जाए। हाँ, अगर वो जहन्नम का मुसाफिर है तो जन्नत का परवाना लेकर जाए, ऐसा करम अता फरमा। अगर बहका हुआ भटका हुआ है तो राह रास्त पर आ जाए। अल्लाह तू जिसे तौफीक देना चाहे तू अपने बंदों के पास भेज देता है। अब हमें इस नेक काम के लिए चुन ले, हमें इस नेक काम के लिए इस्तेमाल कर ले। हम जैसे भी हैं अपने आप को तेरी बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा ले। हमारी औलादों को भी कबूल फरमा ले। हम हर चीज तेरी बारगाह में पेश करते हैं, माल से भी, जान से भी, औलाद से भी, हर तरह हम हाजिर हैं। अल्लाह हमें दीन की खिदमत के लिए चुन ले, दीन का काम ले ले। कोई तरीका सलीका नहीं आता, ना कोई शक्ल, ना किरदार, ना अकल, कुछ भी नहीं हमारे पल्ले, बस आजिजी है, कबूल फरमा दे। अल्लाह किसी चीज का मान नहीं है, किसी नेकी का, किसी भलाई का, किसी इबादत का, किसी चीज का मान नहीं है। हमारा मान तू है अल्लाह, कि तू हमारा रब है, हम तेरी मखलूक हैं। हमारा मान रख लेना। तेरे तेरे महबूब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनके उम्मती हैं, इस बात का मान रख लेना। अल्लाह दुनिया में भी, कब्र में भी और हशर में भी इज्जत वालों में करना, तेरे पसंदीदा लोगों में शामिल हो। बस हमें ऐसा बना दे जैसे तुझे पसंद आ जाए। या अल्लाह हर उस बुराई से, हर उस गंदगी से, गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमा जिसमें तेरी और तेरे महबूब की नाराजगी होती हो। जो गलतियां हो गई, जो कजरवियां हो गई, जो कोताहियां लग्जिशें हो गई, शर्मिंदा हैं, तौबा करते हैं, हमारी तौबा सच्ची करके कबूल फरमा। रुजू करते हैं, अल्लाह हमें हदायत अता फरमा, हमें इस्तिकामत अता फरमा। जो भी खैर और भलाई की दुआएं मांगी सब पूरी फरमा। अल्लाह खैर कसीर और रिज़्क़ कसीर अता फरमा। इलाही अंत मकसूदना वरिदा का मतलूबना आतिना मुहब्बत ज़ातिका व मारफता सिफातिक। आमीन। सल्लल्लाहु तआला अलैहि हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप सब साथियों को आज की महफिल बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आपको बहुत सारा अरूज और बुलंदियाँ अता फरमाए। आपकी तमाम नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएं, नेक ज़रूरतें अपने ख़जाना गैब से पूरी फरमाए। आइंदा की महफिल तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।